آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ پتہ کروا لیں، تحقیق کر لیں. نہیں وہ ہمیں تو نہیں بتائیں گے نا، آپ تو جماعت میں آپ پوچھیں آپ کسی کو سے جماعت میں. میں تو اعتقاد رکھتی ہوں نا، میں ان کو بزرگ مانتی ہوں اور نیک بزرگ مانتی ہوں. میں ان کی بات پہ یقین کرتی ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے. وہ ان میں جھوٹے وہ لوگ تھے ہی نہیں. نہیں باجی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں جھوٹا مانے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعت سے پوچھیں کہ وہ غرارہ جو ہے وہ کہیں ملتا ہے یا پھٹ گیا تھا، آگ لگ گئی تھی، کدھر گیا تھا، یا اماں جان نے کسی اور کو دے دیا. ہو سکتا ہے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا ہو. مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. آپ پتہ کر لیں، آپ کو فکر ہے تو آپ پتہ کریں. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کپڑے انسان بانٹ دیتا ہے، ری یوز بھی کر لیتا ہے، صفائی کے لیے بھی استعمال کر لیتا ہے. گھر میں کپڑا استعمال ہو گیا، مجھے کیا لگے انہوں نے کیا کیا کپڑے سے. آپ نے نہیں میں یہ نہیں عام کہہ رہا ہوں، کھانے میں کے کہہ رہا اپنی ہوں کہ لکڑیاں تبرک کے طور پہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا، اس کے تو بال بھی لوگ سنبھال لیتے ہیں. دیکھیں اچھا نا وہ مرزا صاحب کے بات کوٹ بھی سنبھالے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ذرا غرارہ بھی ہو. بات بیک حوالہ میں کشکار ہو رہی ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. حوالہ پڑھ لوں جی. نہیں ایک منٹ ہے جی سسٹر، ہم تو ہے ہی. اصل بات یہ ہے جو ثاقب بھائی کہنا چاہتے ہیں یا ابو بکر بھائی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے بہت ساری باتیں دیکھ کر ان کے اوپر پھر لیپا پوتی کیا. مثال ایک اور میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں دن اچھا نہیں ہوتا، فلاں دن کو کوئی بندہ کہے کہ میں اچھا نہیں سمجھتا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سسٹر آپ بتائیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ امت الحی منگل کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منگل کو اچھا نہیں سمجھتی. کیا آپ بتا دیں کیا مطلب ہے؟ میں تو اچھا نہیں سمجھتی. میں کیوں نہیں اچھا سمجھوں گی؟ کیا ہے اس میں؟ کیا اگر برائی ہے مگر؟ ہاں جی. فرض کریں کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ آپ منگل کو اچھا نہیں سمجھتی اور واقعتاً آپ اچھا نہ سمجھتی ہوں، تو اس کا مطلب کیا نکلتا کیا ہے مطلب؟ بھئی کوئی برا کام ہوا ہوگا نا اس دن، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، کوئی تکلیف کا وقت ہوگا وہ جو دوبارہ آئے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، برا محسوس ہوتا ہے. نہیں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے منگل کو یا کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے زندگی میں کبھی، تو وہ اس دن کو اگر کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں سمجھتا تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ کالا دن ہے، یہ منحوس دن ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برا دن تھا یا تکلیف کا وقت تھا تو جی جی کہہ ہاں سکتے ہیں جی اسے. سیفی دی درگت اج ویکھی جے. نہیں ادھر تو میں دیکھے نہیں ہوتی ہے. اچھا ضیاء بھائی کا فون آ گیا، تب تک میں آپ کو بات سنا دوں. یہ کنے کر دیتی ہے براڈ بڑی اسکرین تو چھوٹیاں من کنے کر دیتا ہے. اچھا میں آپ کو نا کھول کے دکھانے لگا ہوں، یہ ایک عبارت، یہ بھی اسی کتاب میں جو آپ نے کھولی ہوئی ہے نا، نمبر 11 ہے، یہ روایت نمبر 11 ہے. لے جی ایک منٹ ضیاء بھائی اس کو ذرا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ مسیح موعود دنوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ پڑھی ہے پہلے کبھی بات آپ نے؟ نہیں. منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. نیز بیان کیا خلیفہ نے کہ جب مبارکہ بیگم پیدا ہونے لگی تو منگل کا دن تھا. مرزا صاحب نے دعا کی کہ خدا اسے منگل کے تکلیف دہ اثرات سے محفوظ رکھے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ مسیح موعود جمعے کے دن تمام پیدا ہوئے تھے اور فوت ہوئے منگل کے دن. جاننا چاہیے کہ زمانہ کی شمار صرف اہل دنیا کے واسطے ہے، دنیا کے واسطے واقعی آپ کی وفات کا دن مصیبت کا دن تھا. اچھا یہ منگل کے دن کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ منحوس سمجھتے تھے، کالا دن سمجھتے تھے، برا دن سمجھتے تھے. نیچے نہیں دیکھیں نہیں تو یہ کیا ہے؟ کون سی روایت ہے؟ روایت کون سی بتائیے؟ 11 نمبر. 11. ہاں جی کیونکہ وہ پیدا ہوئی ہے اس دن تو منحوس تو نہیں کہہ سکتے نا اس دن کو. اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اچھا نہیں سمجھتے تھے؟
जब मुबारक पैदा होने लगी तो मंगल का दिन था, तो खाकसार अर्ज करता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जुमे के दिन तवाम पैदा हुए थे और फौत हुए मंगल के दिन, और जानना चाहिए कि ज़माने की शुमार सिर्फ अहले दुनिया के वास्ते है और दुनिया के वास्ते वाकई आपकी वफात का दिन एक मुसीबत का दिन था। सिस्टर बात ये है कि जो रवायत होती है ना, वो रावी के अल्फाज उतने ही होते हैं जितने उसने कहा है कि बयान किया मुझसे वालदा साहबा ने कि मिर्जा साहब मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। ये रवायत के अल्फाज इतने ही हैं। बाकी जो है ना खाक सर अर्ज करता है, ये तो लिखने वाला मौलफ है ना, किताब लिखने वाला जो मर्जी अपना उसमें कमेंट ऐड करे। जो रवायत है, रवायत के अल्फाज इतने ही हैं कि इनकी वालदा ने, बशीर अहमद एम की वालदा ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे अब्बा मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते। इतने ही रवायत के अल्फाज है ना। हाँ जी, मंगल के दिन अच्छा नहीं समझते थे और मंगल के दिन ही वो फौत हुए हैं। हाँ, तो इसका क्या मतलब क्या निकलता है? मंतकी नतीजा तो यही निकलता है ना कि मंगल को मनहूस समझते थे। मनहूस कह सकते हैं आप, इसमें हर्ज तो नहीं है। हाँ, लेकिन बेटा नीचे लिखता है ब्रैकेट में, इसके ऊपर कहता है कि इस रवायत से ये मुराद नहीं कि मंगल का दिन कोई मनहूस है। कहता है कि इस रवायत से ये मुराद नहीं है कि मंगल का दिन कोई मनहूस दिन है। अब बताएं, हालांकि मंगल का दिन अगर कोई बंदा अच्छा नहीं समझता तो सवाए इसके उसका और कोई मानी निकलता ही नहीं है कि वो इस दिन को काला दिन समझता है, बुरा दिन समझता है, काला मनहूस तो दिन नहीं समझता कह सकते ना, उनकी पैदा हुई है बेटी उस दिन में, तो वो उस दिन को मनहूस तो नहीं कह सकते ना। क्या क्या समझते थे? अच्छा नहीं समझते थे तो क्या समझते थे? ना अच्छा नहीं समझते थे, मनहूस नहीं, जरा ज्यादा तकलीफ से लफ्ज हो जाता है मनहूस, लेकिन गल हो ये मरिया नहीं आंकड़े है। देखिए देखिए, कोई लफ्ज ऐसा और है ही नहीं सिवाय मनहूस के। मरे तो खुशी ना करे और सजना भी मर जाना है। ओहो कौन इधर उठो रखो। उसके अलावा, मनहूस के अलावा इसके लिए और कोई लफ्ज अब बाकी बचे? एक जब और आपने लफ्ज है अमर भाई, ये रूहानी बातें हैं। ये अगर आप मुझे हवाला नहीं पढ़ने आपके देंगे तो दुश्मन है अगर, तो आपको खुशी नहीं मनाने की जरूरत, आपने भी मरना है। नहीं, हम आप खुशी नहीं मना रहे। हम टाइम थोड़ा, काफी बंदे आ गए, सबने बात करनी है। ये मनहूस बात नहीं सब इतनी है कि जो बात उन्होंने लिखी है सीधा सीधा उसका मतलब है, इसके उलट वो नीचे लिख रहे हैं कि खाक सर अर्ज करता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मंगल का दिन मनहूस है। भाई मनहूस नहीं तो और क्या है? वो नहीं मनहूस ना, उनकी बेटी पैदा हुई है उस दिन, तो वो मनहूस तो भाई नहीं हो सकता। भाई अगर मनहूस नहीं है, अगर मनहूस नहीं है तो उसका क्या मतलब है? अच्छा ना समझने की वजह बता दें। सख्ती और तकलीफ का पहलू रखता है। अब बच्चा पैदा क्यों होता है या क्यों क्यों तकलीफ और सख्ती का पहलू रखता है मंगल वाला दिन? लिखा हुआ है ना, इससे सिर्फ ये मुराद है कि मंगल का दिन बाज अजराम समावी के मख्फी असरात के मातहत अजराम समावी, भाईजान बेटा, अजराम समावी का असर इंसानी जिंदगी पर अल्लाह के नबी ने फरमाया। जब ये वाक़या हुआ है हुदैबिया के मौके पर, मोस्ट प्रोबेबली जब बारिश हुई है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कई हैं जो ईमान के साथ लौटे, कई है जो कुफर कर। जिन्होंने ये ख्याल किया कि ये बारिश सितारों की गर्दिश की वजह से हुई है, अजराम समावी की वजह से हुई है, उन्होंने कुफर किया है। मिर्जा साहब कौन सी तलीम लोगों को देना चाह रहे थे यहाँ पे? अजराम समावी की वजह से मंगल के दिन के असरात होते हैं। जो बंदा अजराम समावी के असरात दिनों पर बताता है वो शिरक करता है, अल्लाह के नबी की बात की मुखालफत करता है। अजराम समावी चढ़ गए। अच्छा चलें जी, काफी साथी आ गए। मुफ्ती साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। मलक कैसर साहब एक हवाला जी पढ़ लें जी, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लें जी मलक साहब, पढ़ लें। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। बल्ला मलक साहब। अगे इस तो अगली लाइन
मैं पिछली लाइन की करनी है, पिछली लाइन ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। नहीं मतलब मेरा दावा कोई नहीं तो जिथे दावा अगली लाइन च कीता वो भी दसो ना। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ एक ਲਾਈਨ लाइन ਪੜਨੀ च ਹੈ मेरा ਬਸ। कोई ਇਸ दावा ਲਾਈਨ नहीं ਦਾ अगली ਫਾਇਦਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੱਕ हवाला भी ਚਲਾਉਂਦਾ बता ਕੈਨੇਡਾ दे, ਵਿੱਚ, हवाला भी बता दे ताकि मैं ये यकीन कर लूं कि आप ये कितना है एक दोस्त एक कह गलती रहे का हैं, अजाला, कितना आपको समझ आया। एक गजाला की, एक गलती, एक गजाला की, एक गलती का अजाला, बातें तो आसानी हो जाएगी, हमें भी खोलना नहीं पड़ेगा बार बार। एक गलती का अजाला किताब है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कल वो आए थे अपना टाक मास्टर साहब, उन्होंने कहा जी मैं मिर्ज़ा साहब को कुछ भी नहीं मानता। नासिर अहमद साहब सैनी साहब की ब्राड पे कह के गए हैं मैं हदीसों को नहीं मानता। कुमन साहब साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे कि जी मैं भी हदीसों को नहीं मानता। यही हवाला पढ़ा गया तो ताहिर खान पठान आके कहता है कि मैं इस हवाले को नहीं मानता। मौलवी नवीद वड़ैत जो है मौलवी साहब वाली आईडी वाला, वो कहता है मैं मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानता। उसके बाद आप ये देख लें, ये 5 बंदे मैंने गिना दिए हैं, 15 बंदे और हैं। उसके बाद ताहिर अमजद साहब आए और वो कहते हैं कि असल ख़त्म नबूवत के मुजाहिद तो मिर्ज़ा साहब खुद हैं, जो कहते हैं कि ना नया नबी आ सकता है ना पुराना। ये 6 बंदे तो जाइए अब्दुल्ला यूसुफ साहब को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। हाँ जी, अब ये 6 बंदे तो मैंने उंगलियों पे गिना दिए हैं किसे और और चुक, जब तक मैं चुकने हो चुक लांगा, म्यूट हो जो सारे। 6 बंदे भाई मैंने नीचे- गिनतियों पे गिना दिए हैं। अब नीचे आखिरी एक- बात ये है कि नज़ीर साहब आप मुझे वो हवाला दे दे जिसमें मिर्ज़ा साहब का बेटा 2 जर चादरें लपेट कर मीनारा जो दमिश्क में है उस पर लैंड किया था। बस मेरी बात खत्म हुई, भले मैंने ला दे। 8 दिसंबर नीचे एक हाफिज यासीन साहब है, उनको ऊपर ले ले। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਕ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਸੁਣਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ओके जी हाफिज यासीन नाम से कोई आईडी है नीचे, उनको ऊपर ले 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 अमर भाई जी, इसको लेना। जी। मैंने सुना है जी ये कोई हाफिज साहब है, मैंने इनको इसलिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है, इन्होंने आज चंगी टिका के दुर्गत बनाई है सैफी की, आजम सैफी की। ठीक है जी, बस कुछ कुछ थोड़े थोड़े मामलात हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा गाइड भी कर दें, और कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि इनको समझा भी दें। तो आप सब क्या हाल चाल है? माशाल्लाह जी, बड़ा मज़ा आया जी। जी जज़ाकल्लाह खैरा। मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। मैं नाम गुलामी यासीन है और शेखुपुरा से ताल्लुक़ है मेरा। फिल वक्त मैं मलेशिया में हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर ठीक, ठीक। टीचिंग करता हूँ स्कूल में। मैं ना माशाल्लाह, असल में माशाल्लाह। आप आलिम दीन है? नहीं, मैं आलिम दीन नहीं हूँ जी। मैं अच्छा, सिर्फ चंद साल पढ़ा हूँ, तकरीबन 5 साल। अच्छा अच्छा और अच्छा फिर कुछ हालात ऐसे बने कि आना पड़ा भाई। तो अच्छा। आके यहाँ पे ये कि इंग्लिश और हदीस और ये इनकी एक ज़बान मिलाई है, तो उसकी पूरा शहर से टीचिंग है किसी गांव से? शेखपुरा शहर से, हुसैन कॉलोनी पत्ती चौक के करीब। बत्ती चौक के करीब है। अच्छा अच्छा, जी जी आप जी। अब्दुल्ला शेखपुरी की मस्जिद के करीब। शायद नाम नहीं सुना मैंने। ये बात है, उनके बेटे हैं, वो आपकी उम्र थोड़ी होगी, अब्दुल बासित, कारी अब्दुल बासित और कारी अब्दुलरहमान। नहीं, शायद मैं नहीं जानता क्योंकि बत्ती इतना चौक में मस्जिद है बहुत बड़ी, बत्ती चौक के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। ये बत्ती चौक से ना मैं तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर थोड़ा सा यानी फासले पर हूँ। बत्ती चौक इसलिए बोला कि वो जरा मशहूर जगह है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पहले कभी यानी कि नहीं था लाइव पर गया, किसी के भी टिकटॉक नहीं था चलाता जाए, तो ये परसों गया था एक शिया की लाइव पर। कल फिर क्या ये मुझे नाम पता चला उसका, आजम सैफी जो है। तो बात शुरू हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना, उसने लगाया हुआ था कि जी उनकी हयात वफ़ात जो है उनके मतलब ना वो कर रहे थे। तो मैंने सादा सवाल किया कि जी देखें आप, यानी ख़त्म नबूवत की बात तो समझ आती है कि आपने एक नए नबी को फॉलो किया और उसका जो झूठा नबी है उसका दावा आपने कबूल किया है, तो उसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात के साथ तल्लुक़ क्या है? ये क्यों, ये क्या चीज़ हो रही है? तो वो आप साबित करें, आपके नज़र तो वो ज़िंदा हैं, तो ये तो इन चीज़ों पर आ गया। तो मैंने कहा देखें कुरान पाक में तो एक ही ईसा इब्न मरियम का जिक्र है कि जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। तो वो आगे से कहने लगा ईसा तो बहुत हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, मैं आपको बेशुमार गिना दूंगा। ऐसी वैसी बातें करने लग पड़ा। मैंने कहा कुरान पाक से दलील दें, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और भी ईसा इब्न मरियम है, कुरान पाक से दलील दें।
اب اس پر وہ 30 منٹ وہ بھاگتا رہا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، اور کبھی بے بسی کی ہنسی، اور کبھی کذب بیانی، کبھی مجھ پر الزام. یہ دلیل نہیں اس پر کوئی دے سکا کہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ قرآن پاک میں سے. کہتا حدیث پر ہے، حدیث. میں کہا حدیث پر آؤں گا، پہلے آپ قرآن بات کرنا قرآن پاک سے. قرآن پاک میں تو اللہ رسول، رسول واحد کا سیکھا ہے، جمع کرنی ہے، رسول نہیں ہے. تو آپ کی دلیل اس پر. اچھا جی حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. جو بھی نالج ہے آپ کو ماشاءاللہ تھوڑا نالج بھی اپنا بڑھانا چاہیے. جی عامر بھائی انشاءاللہ. سب تو مزے دی گل جڑی مینوں اتھے لگی ہے نا وہ اے سی کہ اعظم سیفی کہتا سی جی میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے جی کہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کئی ہیں. کہ حافظ صاحب کہتے سی حدیث شریف کیوں قرآن تے آ نا قرآن تو کہ دوڑ تسا سارا دن اتنے کہندے قرآن سے بات کرنی ہے. ہن تو حدیث چ تو بعد چ جاواں گے، پہلے قرآن چ تو ثابت کرنا. وہ بیچارے دی بے بسی ویکھن والی سی اعظم سیفی دی، تے وہ بار بار جاندا سی نہیں میں نے کب دعویٰ کیا قرآن کا. تے حافظ صاحب کہن جی نہیں دعویٰ قرآن دا تے کہہ دے بھی قرآن چ کوئی نہیں ایس دلیل اس چیز دی کہ عیسیٰ 1 تو 2 نے. بہرحال یہ ایک مختصر سی بات تھی. اب بات تو کافی لمبی ہوئی ادھر آپ صاحب کی. تو میں آپ صاحب آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا ماشاءاللہ اپنا نالج بھی گین کریں اور ان کی قادیانی کی کتب بھی پڑھیں. میں اور اسی سب لیے سے جو لیٹ ہو مین رہا چیز ہوں. آپ کو فوکس کرنی ہے نا وہ یہ ہے جی کہ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا تو آپ نے مخالف کی بات بڑے دھیان سے سننی ہے. صحیح اس کو ہو گیا. اگنور نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ صحیح. مخالف جو ہے نا وہ اپنے ٹرن میں خصوصاً قادیانی جو ہے نا وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. اپنی ہر کمزوری آپ کے ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں. اتنی بونگیاں مارتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ آپ ان کی چنگی درگت بنا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ڈیبیٹ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے بحث کریں، 5 گھنٹے کریں، گھنٹہ کریں. صرف 5 منٹ میں آپ ایک انتہائی اثر انگیز ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 5 منٹ میں 5 صحیح. منٹ میں آپ اپنی بات ختم کریں، لیکن ختم ایسے نقطے پہ کریں جو لوگوں پر اثر چھوڑتا ہو. آپ نے نوٹ کیا کہ جب آپ نے بات ختم کی نا وہاں پہ کبھی میں نے اپنا قرآن پاک سے موقف ثابت کیا، دلیل قرآن سے دی کہ عیسیٰ ابن مریم صرف ایک شخصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ حدیث میں جو عیسیٰ ابن مریم آیا اس سے مراد کوئی اور عیسیٰ ہے. تو قرآن کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم ایک ہی ہیں. اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا دیکھیں آپ نے تو حضرت عیسیٰ کی دلیل دینے آئے تھے، آپ تو یہاں پہ بار بار وہ کہہ رہا تھا. آپ کے جانے کے بعد بھی وہ کہہ رہے اچھا جی حضرت عیسیٰ ہوگی ثابت. کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس بات کا اثر ضائع کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اینڈ پہ جو ہوا ہے نا کہ اس بندے نے یہاں علی الاعلان بار بار مجھے للکارا ہے کہ بھئی 2 قرآن سے دلیل تم نے کہا ہے کہ عیسیٰ تو 1 سے زیادہ ہے، اور میں آپ کو قرآن سے دلیل دے رہا ہوں صرف 1 ہے. 2 قرآن سے دلیل، قرآن سے اس کے پاس تھا کچھ نہیں. اب وہ جو لوگوں پہ اثر ہو رہا تھا نا اس بات کا، اور یہیں پہ آپ نے بات ختم کر دی. اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اب وہ بار بار بعد میں اور آپ کو اینڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ تو حضرت فاتح عیسیٰ پہ بات کرنے آئے تھے، اس پہ آپ دلیل آپ نے کر دیا ثابت، عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا زندہ ثابت. یہ ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ہمیشہ ڈیبیٹ کو اس پوائنٹ پہ ختم کر دیں بھلے آپ نے صرف 10 منٹ بات کی ہے. جہاں پہ قادیانی کی گردن پہ آپ نے پیر رکھا ہے، آپ کو پتہ چل گیا آپ کی دلیل واضح مضبوط ہے، وہ پکڑا گیا ہے، ادھر ڈیبیٹ ختم کر دیں بس. کوئی ضرورت نہیں گھنٹے 2 گھنٹے کرنے کی. بہرحال ویل ڈن جی. تو بس تھوڑا سا مطالعہ بھی بڑھائیں، قادیانی کی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ کتابیں وغیرہ مجھے آواز آ رہی ہے. استاد محترم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ محترمہ حئی صاحبہ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، موجود ہے؟ جی میں موجود تو ہوں، لیکن نماز کا وقت ہے تو میں ذرا نماز ادا کرنا چاہ رہی ہوں. بس مجھے 2 منٹ چاہیے، زیادہ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو. جی 2 منٹ کر لیں. جی اچھا، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ غیر احمدی آپ لوگ کن کو سمجھتے ہیں؟ کون ہے غیر احمدی؟ غیر احمدی کون ہے؟ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہی غیر مطلب احمدی. یہ ہندو سکھ عیسائی وغیرہ جو انکار کرتے ہیں مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کا، خلیفۃ الرسول ہونے کا. نہیں، غیر احمدی سے مراد یہ ہندو سکھ عیسائی ملحدین وغیرہ ہیں، وہ ہوتے ہیں. ہندو سکھ عیسائی، ہاں جی سارے آ جاتے ہیں نا اس میں، جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتے. اچھا، آپ لوگ ان کو کہتے ہیں.
गैर अहमदी, तो गैर अहमदी हिंदू सिख ईसाई तो नमाजें तो नहीं पढ़ाते, वो कह रहे हैं कि गैर अहमदी के पीछे नमाज ही नहीं होती। गैर अहमदी के पीछे नमाज नहीं होती, इसमें मुसलमान अहबाब खास तौर पे आ जाते हैं ना, मतलब जो नमाज पढ़ते हैं उनकी बात आ जाती है ना। जब नमाज की बात होती है तो वो गैर अहमदी जो नमाज पढ़ाते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनकी बात हो रही है। जब ये नमाज तो दो बातें हो गई हैं ना, यही मोहतरमा मैं आपसे कन्फर्म करवाना चाह रहा था। गैर अहमदी कहते किसे हैं आप लोग? मतलब मुसलमानों को गैर अहमदी आप लोग कहते हैं, यानी मुसलमान जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानते उनको गैर अहमदी आप लोग कहते हैं, या हिंदू सिख ईसाई यहूदी सबको मिला के जो भी नहीं मानता वो सारे के सारे गैर अहमदी हैं? ये पूछना चाह रहा था। नहीं, वो तो नमाज नहीं पढ़ते ना, नमाज तो सिर्फ इस्लाम में है ना, बाकी मज़ाहिब तो नमाज नहीं अदा करते। नहीं, मैंने नमाज का नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ गैर अहमदी किनको समझते हैं आप? जी गैर अहमदी तो सारे होते हैं ना, हिंदू सिख सारे आ जाते हैं ना। सही हो गया, सही हो गया, यानी हिंदू सिख ईसाई सबको आप लोग गैर अहमदी कहते हैं। जी वो तो सारे ही गैर अहमदी आ जाते हैं। हाँ जी, सारे ही हुए ना जो अहमदी नहीं है। तो हम भी बीच में शामिल है ना। हाँ, लेकिन अहमदी चूंकि इस्लाम का फिरका है, इसलिए गैर अहमदी से ज़्यादा मुराद अहमदी मुसलमान अहबाब होते हैं जो कि मिर्ज़ा साहब पे नहीं यकीन रखते, मिर्ज़ा साहब की सच्चाई पे यकीन नहीं रखते। यानी हम लोग गैर अहमदी हैं? ये तो आप जानते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ये इस्तिलाह मेरी तो नहीं है, आप लोगों की है, तो आप नहीं अगर बताना चाह रही तो कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है मिर्ज़ा साहब से मेरे से ज़्यादा आपको मिर्ज़ा साहब की किताबों का नॉलेज है। नहीं देखे, नहीं मुझे नहीं पता था, तो इसी वजह से सवाल किया कि गैर अहमदी होता कौन है। अब ये जरा देखिएगा, अल फजल अखबार है, 11 फरवरी 1915 का शुमारा है, तो उसमें कहते हैं मगर काफिर बहरहाल काफिर है और मोमन हरगज नहीं कहला सकता, और किसी मकाम पर जब तक हजरत मसीह मऊद का मुसद्दिक और बैत शुदा ना हो या इसके किसी खलीफा से बैत ना कर चुका हो, ये हरगिज दिखा दें, किसी ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं फॉलो नहीं कर रही आपको, कहाँ से पढ़ रहे हैं? अल फजल अखबार है, 11 फरवरी 1915 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 8 है। दिखा सकते हैं आप यहाँ पे ये स्क्रीन पे? बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ये लिए आपने 2 मिनट कहा था वैसे। नहीं, वो ही मैंने आपसे इजाज़त ली है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए 11 फरवरी 1915 का शुमारा है और ये सफ़ा नंबर 8 है, और ये नीचे से इबारत शुरू हो रही है जो मैं पढ़ रहा था कि मगर काफिर बहरहाल काफिर है और वो मोमिन हरगिज़ नहीं कहला सकता, और किसी मकाम पर जब तक हजरत मसीह मौत का मुसद्दिक और बैत शुदा ना हो या इसके किसी खलीफा से बैत ना कर चुका हो, हरगिज़ किसी वक़्त में भी काबिले इक्तदा फी सलात नहीं, ना हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान से बाहर, ख्वा अरब हो या अजम या वलायत हो अमेरिका, और ना इसका जनाजा दुरुस्त है और ना इनको कोई अहमदी रह कर लड़की देगा, और जो ऐसा करेगा वो हज़रत अक़दस के कायम करदा खसूसियात सिलसिला को मिटा कर इमाम अदलो हकम के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ करता है, और वो कहीं काबिले इक्तदा नहीं जब तक कि फिर तौबा ना करे। तो यहाँ पर आपको नहीं पता था तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये लोग मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं कि वो वाले मुसलमान के जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानते, और उनको भी ये काफिर कह रहे हैं कि जो मिर्ज़े को तो मानते हैं लेकिन बशीरुद्दीन महमूद के हाथ के ऊपर जिन्होंने बैत नहीं की, यानी लोरी भी इनके नज़दीक काफिर है, ये वो कह रहे हैं। तो इन लोगों के पीछे चाहे वो लोरी कादियानी हो या आम कोई मुसलमान हो, देवबंदी वाबी सुन्नी शिया कोई भी हो,
ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ان کو بچی بھی نہیں دینی، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلمان سمجھتی ہیں کہ کافر؟ میں آپ کو مسلمان سمجھتی ہوں۔ کیوں؟ آپ مرزا صاحب کے کافر ہیں، آپ نبی پاک کے کافر نہیں ہیں، اس لیے۔ لیکن آپ کی جماعت تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کافر ہیں، تو آپ لوگ اپنی جماعت کی نہیں مانتے؟ جی یہ ایک اور حوالہ سن لیں، الفضل اخبار ہے 26-29 جون 1922 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 6 ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ حضرت مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں نہیں اور نہیں، غیر یہ احمدی نیچے آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ٹھہر جائیں۔ نیچے کوئی کہہ رہا ہے، آپ نے بھی ابھی بات کی ہے کہ بچی تو دے دیتے ہیں مرزائی، تو بچی نہیں دیتے نہیں یار، مرزائی، میرے ساتھ ہی بات کرتی رہیں، بچی کومنٹ دیتے ہیں، تو پھر بچی آتے ہی دیتے رہتے ہیں۔ نہیں ہیں، بچی دیتے نہیں ہیں۔ محترمہ کومنٹ تو آتے ہی رہتے ہیں نا، آپ ذرا یہ سن لیں۔ کہتے جی ہیں ہم نہیں، میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں نا اس بات کی، یہ غلط بات کر رہے ہیں، نیچے مذاق کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ اور ہیں، وہ اور لوگ ہیں، وہ آپ کی قادیانی ہیں جو ایسے باتیں کرتی ہیں، تو وہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں۔ نہیں وہ قادیانی نہیں ہے۔ نہیں، قادیانی لوگ ہیں، وہ آپ کے بھائی نہیں، ہیں، آپ ابراہیم تنویر ناراض ہے، مت ہو۔ ابراہیم تنویر ہے، وہ جھوٹ نہ قادیانی بولو مفتی صاحب، اچھا، جھوٹ نہ یہ بولو۔ عبارت میں سنا رہا تھا کہ ہم چونکہ حضرت مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، غیر احمدی کافر ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ غیر احمدی یعنی ہم لوگ کافر ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں آپ کو کافر نہیں مانتی، کیوں نہیں مولوی صاحب، مانتی؟ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ قادیانی مربی حکیم راشد صاحب نے دیکھیں ٹھوک بجا کے ہمیں کافر کہا ہے محترمہ، تو آپ بھی اب آپ اپنا موقع بتا دیں۔ اور دوسری بات ہے، ایک منٹ سسٹر، ایک منٹ، یہ منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، منکر بھی ہے، اور سب سے بڑا کافر ہے پھر۔ اتھے رکھ اچھا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتار دیں تاکہ حئی صاحبہ سے بات کر لیں ہم۔ تو میں حئی نہیں صاحبہ بول آپ رہا۔ اپنا بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ہم لوگوں کو؟ عبداللہ میں نہیں جانتی، آپ یہ عبداللہ احمدی ہیں، آپ نیچے اتار جی دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے یہ مربی صاحب ہیں، حکیم راشد ان کا نام ہے، حکیم راشد صاحب۔ نہیں میں نہیں، ان کو مجھے نہیں نہیں، پتا۔ یہ وہی ہیں کہ جو مرزا صاحب کی گانڈ کے اندر نا ہاتھ بھی ڈالتے ہوتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو اگر نہیں پتا تو بتا دیں، میں پھر آپ کو مجھے نہیں ان چیزوں کا پتہ، آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرا کام ہے تحقیق کرنا، کہ میں ایسے آپ کی بات کو یقین نہیں مفتی کر صاحب، یہ حکیم راشد صاحب کی ایک پیش گوئی بھی ہے اور انہوں نے یہ ابھی ایکسیپٹ بھی کیا ہے، انہوں نے میرا موضوع ادھر ادھر ہو گیا نا، میں نے ایک موضوع پہ ابھی رہ کے بات کر رہا ہوں، تو وہ موضوع نا ادھر ادھر ہو جانا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ حکیم راشد جس سیاست پہ آیا تھا نا وہ کامیاب مجھے لگ رہا ہے ہو جانا ہے اس نے۔ تو محترمہ حئی صاحبہ، آپ ہمیں اب بتائیں کہ ہم سب مسلمانوں کو، یہ محترم عامر صاحب بیٹھے ہیں یا ضیاء رسول یا دیگر مسلمان جو لوگ ہیں اور بشمول میرے، ہمیں آپ لوگ کافر کہتے ہیں کہ مسلمان؟ دو حوالے میں نے دکھائے ہیں، میں حوالے آپ کو 10 کے قریب حوالے دکھا سکتا ہوں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ یعنی مسلمان کافر ہیں آپ لوگوں کے نزدیک۔ جی مفتی صاحب، یہ اکبر خان صاحب بھی مرزا صاحب کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بھی یار ایک سے تو بات کر لینے دیں، مجھے نظر آ رہا ہے میری جان۔ محترمہ حئی صاحبہ کے پاس پہلے ٹائم کم تھا، تو آخری بات ان سے ذرا پوچھ لیں، تو پھر اکبر صاحب کی طرف بھی آتے ہیں۔
जी मोहतरमा, आप हाँ ना में कुछ बता के तो फिर आपकी नमाज का भी टाइम है, तो चले जाइएगा। जी नहीं, बात ये है कि हाँ जी, क्या बात आप कर रहे थे? मैं मैंने कह तो रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों के नजदीक मुसलमान हैं कि काफिर? मेरे चौथे खलीफा की मैं सुन रही थी, मुझे याद पड़ा है, उन्होंने कहा कि हम तो आपको मुसलमान मानते हैं, तो मैंने तो उनकी ताजीम में आपको वही बात कही है जो उन्होंने कही है। जबरदस्त। ये चौथे खलीफा साहब की कोई वीडियो सुन रही थी आप? मुझे लगता है मैंने उनकी कोई वीडियो सुनी है, कोई सवालों जवाब उनके होते थे, तो उनसे भी किसी ने ये सवाल किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपको मुसलमान समझते वो हैं। कहाँ पे? उनकी ऑडियो तो आज तक असी तो नहीं देखी। मैंने तो कोई सुनी है, इसी वजह से मैंने आपको ये जवाब दिया। चौथे खलीफा के? अच्छा, मैं दूसरे समझ रहा था, चौथे खलीफा। लेकिन 2 नंबर खलीफा ने सबको काफिर कहा है, जिस तक मिर्जा साहब का पैगाम पहुंचा या नहीं पहुंचा। हाँ जी, जिसने 2 उनको नहीं नंबर माना वो खलीफा पक्का साहब काफिर है। ने तो सबको ये लोरियों को भी काफिर कहा है, और सबको, यानी जो भी बशीर साहब को नहीं मानता था, जिसने उनकी हाथ के ऊपर बैत नहीं की थी, वो सारे के सारे काफिर। नहीं, इस्लाम के नबी पाक ने फरमाया ना, इस्लाम के इतने फिरके होंगे, तो जो फिरके हैं सारे शिया सुन्नी वहाबी जितने भी हैं, देवबंदी, ये सारे उसी में आ जाते हैं ना, मैं इस्लाम में सुन्नी शिया वहाबी देवबंदियों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग मिर्जा कादियानी की हाथ के ऊपर बैत नहीं की, वो मुसलमान थे कि काफिर? वो हाँ या ना बताएं, तो फिर आगे बात थोड़ी सी बंदा कर लेते हैं। काफिर अगर आप काफिर पक्के काफिर। नहीं, मैंने हवाले अकबर साहब दिखाए हैं अभी, हाँ जी। पक्के काफिर वो कह रहे हैं, ये पक्के काफिर। आप तो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, मैंने नहीं कहा। चलो, मेरे नहीं, मुंह क्या, आपने मैं नहीं तो कहा, किताबें लेकिन अभी खलीफों ने सुनाई ये है, कहा है। ना मेरे मैंने खलीफा किताबें ने सुनाई कहा, है। ना हम कहते हैं, आप अपने मुंह से खुद मान रहे हैं। ओ नहीं, मैं किताबें दिखा रहा हूँ, अपने मुंह वाली तो चक्कर ही कोनी है। ये देखें, एक जरा आपको मैं तस्वीर का एक रुख दिखाऊं। ये बशीर साहब का बुगद और अनाद इन पिगामियों के साथ, पिगामे सुलह वाले ये जो लोरी थे, इनके साथ बुगद और अनाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ। पिगामे सुलह है, और जब ये अल फजल छपा था ना, तो इनकी देख लें, इन्होंने कितनी इज्जत अफजाई की थी अल फजल अखबार की। अब ये 13 जुलाई 1913 का शुमारा है, इसके अंदर बकायदा वो अल फजल के बारे में, ये सफ़ा नंबर 3 है। कहते हैं कि अल फजल मन तेरा हाजी गोयम अलख के असूल पर नहीं, बल्कि इस लिहाज से कि मंदरजा उन्वान नाम जदीद अखबार फिल वाक़े एक होनहार हम असर है, और नीज़ इसलिए कि हमारे इमाम मुता के फर्जंद रशीद साहबजादा मियाँ महमूद साहब की एडिटरी में जारी हुआ है, और फिर इस वजह से कि एक दूसरे पर मुआसिराना हमदर्दी और ख्वाही का भी हक है। हम अल फजल कादियान का बड़ी खुशी से खैर मकदम करते हैं। खुदा उसे बारावर करे। मुख्तसर लफ्ज़ों में इसका मकसद दीनो मिल्लत इस्लाम की खिदमत है। 4 नंबर बड़ी मेहनत और काबिलियत से मुरतब होकर निकल चुके हैं। तो आगे ये कह रहे हैं इसको ख़रीदें और इतने पैसे का है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अल फजल का ये शुमारा है मेरे पास, एक 22 जून 1914, ठीक है। ये देखिए इनका बुगद और नाद इस पिगामे सुलह के बारे में, ये सफ़ा नंबर 2 है। तो कहते हैं पैगाम बंद कर दिया जाए। कहते हैं खाकसार की चंद सतूर दरबाराए पैगामे सुलह अपने अखबार गोहर बार में शाया फरमा दें। हमारा कलब बर्दाश्त नहीं करता कि पैगाम को खरीदा जाए, पता नहीं क्या है, खुदा के कायम करदा सिलसिला की तौहीन में बजाय सवाब के। ये कुछ लफ्ज़ ना समझ नहीं आ रहे, ये पता नहीं क्या है।
तो पैगाम हमारे नाम बंद कर दें। हाँ जी, और आगे ये इस तरफ खरीदार ये वो ये इनका भुगत और नाद देख लें। हाँ जी, वो यार ये तुम लोग तो अपनों को ही वो उसका उनकी जेबें काटने और उनके ईमान कुफर के और उनके ऊपर कत्लो गारतगिरी और बुग़्ज़ और अनाद, और तुम लोगों का तो अपना नहीं वो झगड़े खत्म नहीं हुए आज तक, तो तुमने दूसरे मुसलमान और दूसरे फिरके और दूसरी दुनिया को तो क्या संभालना है। हाँ जी, ये था वो बुग़्ज़ और अनाद जो बशीरुद्दीन महमूद ने सिर्फ अपनी सीट पक्की करने के लिए वो मौलवी मोहम्मद अली का हक मारा कादियानी का, और उस बेचारे को साइड पे नुक्कड़ पे लगा के तो खुद तल्ला मार के बैठ गया। है जी, तो ये सारी नुसरत जहां बेगम ने किया है ना, नुसरत जहां बेगम लड़ पड़ी थी, वो कहना ना भाई मेरे पुत्र नु अगे ले आओ। तुम लोगों की लड़ाइयां अपनी नहीं खत्म, अज तक नहीं हुई, एक दूजे नु तुसी कुत्तियां करदे हो पे, बड़े खांदे ने पे, यकीन जानो। ये आपके इल्म में बात नहीं है, नुसरत जहां नहीं लड़ी थी। मिर्जा साहब को पेश गोई अल्लाह ताला ने उनको इल्हामन बताया था कि एक बच्चा होगा, वो सारी लंबी पेश गोई है 1.5 सफ़े की। ज़की गुलाम, हाँ जी, वो पेश गोई थी, उसके मुताबिक वो मिर्जा बशीरुद्दीन साहब को खलीफा चुना गया था, और उन्होंने खुद फिर दावा किया था कि मैं ही इस पेशगोई का मिस्दाक हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो कलाबे बंदे हैं ना, इन्होंने अल फजल अखबार ही मेरे सामने अभी पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगी तो मैं दिखा भी दूंगा। मैं कहता हूं अल फजल के अंदर वो जनाब जब ये मिस्री साहब अब्दुर्रहमान मिस्री साहब ने कुछ इतराज़ात किए थे, तो जनाब वो बंदे का नाम तो नहीं मुझे पता, ज़हन में नहीं है, तो वो उसका ये मकाला छपा है। हाँ जी, उसने वो कलाबे बंदे हैं जनाब हमारे जो बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, वो उसने कहा बाज नबियों से भी अफसल है ये। हाँ, मैं अभी ये तलाश कर रहा हूँ। आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, नीचे वालों नहीं, मैं अभी दिखाता हूँ। ये गौर, ये मदद कहने लगे वो बाज नबियों से भी अफसल है। ये लें, ये आ गया। आपने ये अल फजल की तहरीर किसकी पढ़ी है, किसने लिखा? ये देखिए ये अल फजल अखबार 10 जुलाई 1937 का शुमार है। ये देख लें। और ये तहरीर थी 4 जुलाई हल्का मस्जिद मुबारक के अहमदी असहाब के जलसा में हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने हस्बे झैल तकरीर फरमाई। ये यानी उसने मोहम्मद इस्माइल को, मीर इस्माइल को आगे कर दिया था कि तू ना मेरे फजाइलो बरकत बयान कर लोगों को। ये देखिए ऊपर, हजरत अमीरुल मोमिनीन खुदा ताला के कायम करदा खलीफा हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें मजूल नहीं कर सकती। शेख अब्दुर्रहमान मिस्री और फखरुद्दीन के इखराज जमात की वजूहात। अब ये बंदा जो बशीरुद्दीन महमूद था वो तो हो गया साइड पे, और उसने इसको आगे किया कि तू मिंबर ते चढ़ जा ते उठ के मेरे ना फज़ैलो बरकत बयान करने शुरू कर दे। अब यहाँ पर मैं वो इबारत आपको तलाश कर देता हूँ कि जिसमें कहते हैं कि ये तो बाज नबियों से भी अफजल हैं। तो मुझे ज़रा मैंने ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की हैं, तो उसमें से अब मुझे कुछ तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब्दुर्रहमान मिस्री था और फखरुद्दीन था और दीगर लोग जो थे, ये इस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, बशीरुद्दीन महमूद को, और उन्होंने कहा ये जानी है, शराबी है, इसकी जगह किसी और को बनाओ, इसकी हाथ के ऊपर हमने बैत को नहीं करनी। तो ये वो बहुत बड़ी, अच्छा इसी मजमून के अंदर इन्होंने ये भी लिखा है कि कादियानियों की 80% लोग वो थे कि जिन्होंने बशीरुद्दीन महमूद के हाथ के ऊपर बैत ही नहीं की थी। हाँ, बहुत बड़ी तादाद। उन्होंने कहा चंद लोग बाकी रह गए थे जिन्होंने बशीरुद्दीन महमूद के हाथ के ऊपर बैत की थी। हाँ,
तो बहुत कुछ है, ये मजमून आप पढ़े, आप आपके इल्म में भी इजाफा होगा, तो बड़ी तफसीली ये मजमून है। साहब इतने गर्म ना हो, आप तो खुद तो यार इतने चुप कर जा, मुनाफिक हो। कीमा एमे रगड़िया आप तो जाएगा, बहुत चुप बड़े कर जा जरा। मुनाफिक हो, और कीमा एमे मुनाफिक रगड़िया को जाएगा तू। छोड़कर बात करो। मैं हकीम साहब अपनी बहुत बड़े खिलाफत कुरान मुनाफिक से हो, साबित करो। हकीम साहब अपनी बहुत बड़े खिलाफत कुरान से मुनाफिक साबित हो, करो। मुनाफिक, मुशरक, मुनकर और काफिर हो। कुरान से साबित करो अपनी खिलाफत। तो तेरी माँ की मैं मुनाफिकत साबित करूँ यहाँ पे? हाँ करो करो नहीं, तेरे चाचे की करूँ? करो करो करो। वो बेगैरत तेरे चाचा तेरी माँ को ऊपर चढ़ा हुआ था और तूने उसको जज़ाकल्लाह छुरी से जज़ाकल्लाह ये काट दिया। ले, ये देखें, ये जज़ाकल्लाह। देखें, ये सफा नंबर ये 8 के ले, ऊपर ये मिर्जे कादियानी का एक शेर लिख के वो कहता है, इस्माइल मीर इस्माइल, वो शेर ये कहता है कि ये शेर बशीरुद्दीन महमूद के मुतल्लक है। ये देखें, फिर हजरत मसीह मऊद का ये इल्हामी शेर मुस्लिम मऊद के मुतल्लक है कि ए फखरे रुसल, रसूलों का भी फखर है ये। हाँ जी, ये रसूलों का भी फखर है। कौन? बशीरुद्दीन महमूद, जानी शराबी आदमी है। और तुम्हारे बरेलवी अहमद रजा बरेलवी कुत्ते ने की भी सुनते हैं मेरे पास, सुनाऊं उसकी? सुनते हैं? हरामी मौलवी। नहीं, मुझे नहीं समझ आ और रही आप क्या लानती बात कर रहे खंजीर क्या भौंक रहा है? ये बगैरत। ਮੈਂਟੀ ਜੇ ਜਵਾਬ ਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, हो। या ही ना यहाँ ते चुको ना, ते जे अगला गाला करता है ते फिर उन्होंने जिम्मेदारी हो ते खुद गाला ना, तो वो है तरीका ठीक नहीं। किराए पे अहमदी रखे हुए हैं आपने, ये मुझे नहीं पता कौन से उठ के अहमदी आ रहे हैं, मैं इनको नहीं जानती। दुनिया में, सारी दुनिया में फैले हुए हैं अहमदी, तो आपके बकौल अहमदी हैं तो वो मैं नहीं, मेरा उनसे तारुफ नहीं है। चलें नहीं, कोई ठीक है। नहीं, ये आपके भाई हैं वो सारे। आपके मिर्जा साहब जब गालियां देते थे तो आपके भाई लोग देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपके मिर्जा साहब ने वो तो घट गालियां दी हैं, वो सारी उम्र माशाल्लाह गालियां तो देते रहे हैं। उनको आप नीचे गिरा देते हैं, बात तो उनके साथ करते नहीं हैं। अच्छा ये जरा नए नहीं, अगर आपने मिर्जा साहब की तालीम सुननी है मेरी बहन, तो उनको दोबारा बुला लेती हैं। उन्होंने वो मिर्जा साहब की किताबें पढ़ पढ़ के सुनानी है, बाद में आपने कहना है कि ये गालियां दे रहे हैं। तंग तुसा ही पैना है, साडा कोई नहीं जाना कुछ। नहीं, तंग क्यों पढ़ना है? मिर्जा साहब की बातों में क्या गलत है जो आपने तंग पढ़ना है? आप क्यों, आप तो तंग नहीं पढ़ रहे, हम क्यों तंग पढ़? ये तो है बाकी। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी। मिर्जा साहब ने एक नमाज पढ़ती हैं आप मोहतरमा? नमाज आप पढ़ती हैं? अगर आप पढ़ने दें तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूँ, तो बकाया तफसीली बात बाद में करेंगे जब आप नमाज पढ़ के आएंगी ना, तो बाद में। इन्होंने ना एक मर्दों की नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया है कि वाह नमाज मुफ्ती कैसे। साहब फुल, मैं फुल मारने हशूख दो, वाह फुल मारो सारे। नहीं आप नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। मर्दों की नमाज पढ़ने का है तो एक तरीका बताया कि वो खुशू खजू कैसे हासिल होगा। औरतों की नमाज का कोई तरीका नहीं है, वो मैंने सिर्फ पूछना था कि वो कहाँ पे है। आप दोनों मर्दों और औरतों का खुशू खजू एक ही है। आपको औरतों की नमाज की क्यों फिक्र आ गई? औरतें औरतों से आके पूछ लें। नहीं, वो तो ठीक है। देखें, हमने आप लोगों की किताबें पढ़ी हैं ना, तो हमें तो वहां पे मर्दों की नमाज का जो खुशू और खुदू है उसका तरीका तो मिलता है। लेकिन मैं ये कह रहा था, सवाल समझें आप पहले, नाराज ना हो, कि औरतों की नमाज का खुशू और खुदू का कोई तरीका नहीं मुझे आज तक मिला। औरतों की खुशू खुशबू का तरीका क्या होता है? क्यों औरतों वैसे को आप नमाज के अंदर खुशू और खुदू कैसे हासिल करती हैं? जैसे मिर्जा साहब ने हमें तरीका बताया उसी तरीके पे करते हैं। कौन सा तरीका, थोड़ा सा बताएं। ये वाला तरीका, ये शायद आपको हवाला पता है कि नहीं?
ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 192 के ऊपर एक तरीका लिखा हुआ है इन्होंने। पास आती हूँ, आपके पास तो ज्यादा हवाले हैं, मेरे से ज्यादा आप ऑर्गेनाइज हैं। नहीं, ये वाले यह हवाला कोई और है। हेलो, मोहतरमा नाराज तो नहीं हो गई? हाँ जी, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नहीं, आपके पास है, मुझे पता है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 से निकाले जरा अपने पास से। अच्छा, जिल्द 21 और मुफ्ती सफ़ा साहब 192 जरा पढ़िएगा जरा। और ये मुफ्ती साहब हम आपसे इसमें ये नुतफा वाला लफ्ज कितनी यार एक बार है? मिनट यार, तू इम्यूनिटी तू विच तू डा दिया कर, की करना है? आप यहीं पे पढ़ दें, यहीं पे पढ़ दें, मैं देख रही हूँ, आप पढ़ें। नहीं मोहतरमा, असल में पता क्या, वो आपके मिर्जा साहब की ये रूहानी तहरीर है, तो मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। दिखा दें जरा, सफा नंबर दिखा दें और किताब दिखा दें। ये देखें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 है, निकालें जिल्द 21। जरा पीछे करके दिखाएं, पूरा मुझे सफा दिखा दें तो मैं फिर निकाल लेता वो जिल्द 21 सफ़ा 192 192 ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। चले यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना चाह रही हैं? जी, यहीं से पढ़ लें तो चले नजर पढ़ तो दें फिर। ये रहीम खुदा से पढ़ना शुरू करें। रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं, और उस ये किसकी बात हो रही है, क्या बात चल रही है, किसकी बात हो रही है? ओहो, आप ये कोई रूहानी बात है ये? अच्छा अच्छा, रूहानी बात है। जी, और उस नुत्फे की तरह होते हैं, कौन होते हैं ये भी पता होना चाहिए ना। इसीलिए तो कहा था आप खुद पढ़ लेती हैं, अपने पास से किताब खोल लेती हैं। आप सब्र कर लेना, आपसे सब्र नहीं हो रहा। जी जी, अच्छा जी, ठीक। रूहानी खजाइन जिल्द कौन सी है? 21। जिल्द ये कौन सी है? किताब का नाम क्या लिखा है? ज़मीमा बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम। अच्छा, मैं देखती हूँ। अमसलई साहब, आप खुद बैठ के अकेले में पढ़ लेना प्लीज। इनमें कोई अच्छी बातें नहीं लिखी हुई, अच्छी बातें इसमें नहीं लिखी हुई, आप अकेले में खुद नहीं बैठ के पढ़। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बातें यार मलक साहब, रूहानी बातें क्या कर रहे हैं आप? नहीं, एक तरफ तो फिर अगर हम इनको बेटी भी कह रहे हैं, बहन भी कह रहे हैं, फिर ऐसी बातें भी कर रहे भाई हैं, मुझे ठीक तो है ना, समझ नहीं आ रहा। उनकी तो रूहानी बातें ना आपके नजदीक नहीं है, आपके नजदीक होगी ये बेशर्मी वाली कोई बात है, लेकिन उनकी तो रूहानी बात है, उनको पढ़ने दें, कोई टेंशन नहीं। नुसरतुल हक है ये। अच्छा, 192 सफा कह रहे हैं, ठीक है। और पहला उसका लफ्ज होगा मकरू है। 192 ये आ गया, हाँ जी। अब या शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, शुरू से। हाँ, मैं शुरू से करूंगी ना, ये तो बहुत लंबा पैराग्राफ पीछे से हाँ, पहले एक यार सफा ही पढ़ मुझे दें, नहीं बस आ एक रही, सफा यहाँ काफी। कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही? 192 हाँ जी, जी, 192 190 मकरू है, पहला लफ्ज है मकरू है। मकरू है से तो फिक्रा नहीं ना शुरू हो रहा है, फिक्रा तो पूरा जहां से जुमला शुरू हो रहा है, जहां तक के भांग चरस और शराब नहीं। सुनने मैंने ये देखे हुए लोग सारे, मुझे पता है आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं मैडम, आपने मिर्जा साहब को नहीं देखा हुआ? उनको हमें देखने शर्म आ की रही है, आपको तो नहीं आ रही या नहीं आ रही है, आपको पता होगा हमें शर्म आ रही है, हम नहीं सुन सकते इसको। पहले आप किसी सवाल बहन के मुंह करते से। हैं, बाद में आपको शर्म आती है, आप दोगली पॉलिसी चलाते हैं। कौन सी दोगली पॉलिसी?
शाह साहब भी मुनाफिकाना आपको क्या यही है? कह रहे हैं कि भाई हम नहीं पढ़ सकते। भाई पहले आप कह रहे हैं आप बैठ जाएं, मैंने सवाल करना है, आप नमाज बाद में पढ़ लें। पहले आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नमाज लेट करवा रहे हैं, ऊपर नहीं से वो आप ठीक है बात उनकी, लेकिन ये हवाला आप खुद पढ़े उधर खोल के। देखें वो तरीकाकार तो नमाज का पता होना शाह साहब चाहिए। आपको कह रहे हैं कि वो नहीं पढ़ सकते। अगर इतनी ही कोई बात आम सी होती तो शाह साहब ना पढ़ देते। जी तो वो नहीं पढ़ सकते तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं सबके सामने? एक सवाल आप सवाल पर्सनल करने में जाके पढ़ लें। देखिए आपके मसीह मौत की किताब है, आप पर्सनल में वो आपको हवाला दे रहे हैं, आप पर्सनल में जाके पढ़ लें उसको, और पढ़ ये के तो फिर तरीका बाद में बता दीजिएगा आके। ये तरीके से नमाज उन्होंने बताई है, वो पढ़ लिया हाँ करें जी। आप यार तो वैसे पहले पढ़ के वैसे फिर एक मिनट, शाह साहब एक को मिनट आगे नाराज जवाब ना दे हो दीजिए। भाई, कोई भी नाराज ना हो। देखें आप लोगों के नजदीक वो तहरीर जैसी भी है वो आप लोगों के नजदीक है ना, मेरे नजदीक वो अच्छी नहीं है, मैं नहीं पढ़ी। लेकिन उनकी तो अच्छी बात है ना, उनको उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है यार, आप करने दें, क्यों रोक रहे हैं? रोकने की वजह भी तो कोई बताए ना। वो मोहतरमा जी ठीक कह रही हैं बिल्कुल। कि आप खुद ही नहीं कह रहे नहीं हैं कि शाह भाई साहब पढ़ो, पढ़नी तो खुद ही चाहिए, आप मुझे लोगों को रोक भी भी रहे हैं। पता चले, अवेयरनेस आती है जी इससे। जी जी मोहतरमा बाजी यहाँ आप पर ही पढ़िए, पढ़नी आप चाहिए। कोई मसला नहीं, पढ़िए। और भी तो चीजें पढ़ी जाती है ना शाह साहब। जी जी कोई बात नहीं, उनको पढ़ने दें आप। जी बाजी, आप पढ़ दें, मैं सुन लेती हूँ। बाजी मैं कह रहा हूँ कि देखें वो मेरे नजदीक वो गलत बात है, जी लेकिन गलत बात आपकी तो अपने मसीह साहब की किताब है ना, आपके नजदीक तो वो अच्छी चीज है, रूहानी खजाइन है, वो रूहानी बातें हैं। नहीं, तो मेरी बात सुने, अल्लाह ताला कहता है कि मैं मिसाल मच्छर की देनी पड़े या उसके ऊपर जो जरासीम होता है उसकी, उससे भी नहीं शर्माता। तो जब अल्लाह ताला नहीं शर्माता, नबी पाक से, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से लोग पर्सनल बातें, उनकी खलवत की बातें पूछा करते थे कि अपने नॉलेज नहीं, के वो लिए। तो वो आप मिर्जे को वहां पे नाना जाके मिला दें, जाती कोड़ हम तो किरली तक मिलाएंगे, छतीरा जफे हम तो नाना मिलाएंगे, करें, हम तो बात मिर्जे मिलाएंगे, की हो रही है। हाँ, हम तो मिलाएंगे जब चले मैं उन्होंने आपको दावा खुलासा किया तो बता हम तो देता हूँ इस मिलाएंगे। पूरी तहरीर का, पूरी हाँ तहरीर का खुलासा बता देता हूँ, इजाजत है? जी बता दें। वो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए तुम्हें ऐसे मजा आना चाहिए कि जैसे मिस्टर आप मिर्जा साहब की ताक ना करें, करें ना करें, मिर्जा प्लीज साहब की सिस्टर आप ताक जाए करें, नमाज पढ़ने मेहरबानी जाएं आप। करें। वो जो बातें थी वो और हैं, ये बातें आप और हैं। सिस्टर जाए नमाज पढ़ने जाएं, ये बहुत गंदी तहरीर है। बहुत गंदी तहरीर है ये, लेडीज के सामने नहीं पढ़ सकते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। टूर ਇਹਨਾਂ गया ਨੇ ने शाह ਪੜ੍ਹ साहब ਗਈ टूर ਕੋਣੀ गया। ਮਿਰਦੇ ਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम मुफ्ती साहब वो चले गए हैं, अब हमें बता दें क्या है तहरीर में, हम भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वो तहरीर ये है जी, वो कहता है कि जैसे मजा तुम्हें ऐसे नमाज के अंदर ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। अल्लाह ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? यार नहीं, एक गल मिनट सार ठहर भाई जाओ, ਉਹਨਾਂ ठहर ਦੀ ठीक जाओ। है, वो ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ हाँ ਜਾਂ जी ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਫਿਰ। जी एहसन साहब कर लीजिए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ लीजिए। हेलो पट्टो ना ਨਹੀਂ माइक ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਂਝ ਥੋੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ? ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਭਾਜੀ। लड़ते नहीं है भाई, मैं पे आना औरत है, औरत एहतराम करो बस। वो हली वली जिन्हें भी लिखी है और लिखने वाला बगारती करके तो तुम औरतों के सामने पढ़ो थे, आपको कुछ सोचो ना जनाब। ਐ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋਗੇ? ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ पढ़ो ਪੜ੍ਹਨੀ? ना, तुम्हारे को मेरे नजर नहीं मन नजर नहीं आना है, तुम पढ़ो, सुनो नहीं आती। ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हकीम राशिद साहब आ गए ने, हुन पढ़ो मुफ्ती साहब।
हकीम राशिद को ना पढ़वाइए, हकीम हकीम राशिद साहब भी पढ़े लिखे हैं। मैं तो फिर अहमद रजा बरेलवी कुत्ते दी पढ़नी तहरीर उस पढ़ते बाद सही यार, पढ़ते सही की लिखे है हकीम। कहता है रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं और उस नुतफा की तरह मनी जो होती है गुस्सा मादा कर गया, नहीं मनविया, पढ़ता। नुतफा की तरह होते हैं जो आतशिक की बीमारी या जजाम के आर्जा से जल जाए और इस काबिल न रहे कि रहम उससे ताल्लुक पकड़ सके। बस रहम और रहीम का ताल्लुक या अदम ताल्लुक एक ही बना पर है। वो कहता है रहम औरत की शर्मगाह और रहीम अल्लाह पाक। वो कहता है दोवें एक ही चीज़ां ने, एक ही चीज है। कहता है आगे, कहता है सिर्फ रूहानी और जिस्मानी वारिस का फर्क है, जैसा कि नुतफा यानी मादा मनविया बाज अपने जाती वारिस की रूह से उस लायक नहीं रहता कि रहम उससे ताल्लुक पकड़ सके और उसको अपनी तरफ खींच सके, ऐसा ही हालत खुशू नमाज के अंदर जो होती है। वो कहता है जब औरत के साथ तुम जिमा करते हो तुम्हें लुत्फ आता है, मजा आता है, चस्का है। वेंदियों पे गंदगी का यानी गंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो मुफ्ती नुतफा साहब के दर्जा मैं पर है, लख दी लानत तोड़े थे बाज़ अपने वारज़े जातिया की वजह से जैसे तकब्बुर और उजब और रिया और किसी किस्म की जलालत की वजह से या शिरक से इस लायक नहीं रहती कि रहीम खुदा उससे ताल्लुक पकड़ सके। बस नुतफा की तरह तमाम फजीलत रूहानी वजूद के अव्वल मर्तबा की जो हालत खुशू है, रहीम खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक पैदा करने से वाबस्ता है, जैसा कि तमाम फजीलत नुतफा की रहम के साथ ताल्लुक पैदा करने से वाबस्ता है। बस अगर इस हालत खुशू को इस रहीम खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक नहीं और ना हकीकी ताल्लुक पैदा हो सकता है, तो वो हालत उस गंदे नुतफा की तरह है जिसको रहम के साथ हकीकी ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता। और याद रखना चाहिए कि नमाज और याद इलाही में जो कभी इंसान को हालत खुशू मुयसर आती है और वजद और ज़ौक़ पैदा हो जाता है या लज्जत महसूस होती है, ये इसी बात की दलील नहीं है कि इस इंसान को रहीम खुदा से हकीकी ताल्लुक है। जैसा कि अगर नुतफा इंदामे नहानी के अंदर दाखिल हो जाए, देख रहे हैं आप, और लज्जत भी महसूस हो, तो इससे ये नहीं समझा जाता कि उस नुतफा को रहम से ताल्लुक हो गया है, बल्कि ताल्लुक के लिए अलहदा आसार और अलामात हैं। बस याद इलाही में ज़ौक़ शौक़, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खुशू कहते हैं, नुतफ़ा की उस हालत से मुशाबे है कि जब वो एक सूरत इंजाल पकड़ कर इंदामे नहानी के अंदर गिर जाता है। देख रहे हैं आप, ये है कादियानियों का नमाज के अंदर खुशू और खुजू। है कोई कादियानी क्या अपनी अपनी बच्ची के सामने बैठ के उसको ये नमाज का तरीका बता सकता है कोई कादियानी? कश्मीरी साहब मौजूद हैं? जी जी कश्मीरी साहब बताएंगे। कश्मीरी साहब तेरी भैन दा यार का दयानी है कोई इम्यूनिटी मैनू दस। मिर्जा साहब क्या मिर्जा साहब लानती ने क्या सूर दे बच्चा मैं तेन 500 यूरो नाम दियांगा क्या मिर्जा साहब लानती सूर दे बच्चा 500 यूरो दा माइक बंद करी मां क्या मिर्जा लानती है कश्मीरी साहब ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ नहीं ये गाली बात भी है कादियानी भी है ते कहंदा मैं हुसैन नहीं हां ते एक मिनट ठहर जाना मैं भैन दा यार भी है नाले भी ए भी बंद है ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ हाँ जी कश्मीरी साहब कश्मीरी साहब तुसी तहरीर पढ़ी है जेडी मुफ्ती साहब ने पढ़ी जे और यार मुफ्ती साहब ते आप केस चार लोंडे बात यार देखा जी सारा ना ए लोंडे बात है कि मुफ्ती सुनाई जे ना इलामा साहब ने तुसी गल करन दे इलामा नजीर साहब बैठे हैं ए देखो एक औरत है वो देखो कुछ भी है साडियां भी मामा भैणा है किस तरह जे तरीका कि नहीं तू कादियानी है इलामा साहब बैठे ने कदे भी इस तरह दी देखो मिर्जा साहब नहीं लिखे है ना तुसी इलामा साहब नु गल करन दे इस लांती नु बिठाया तुसी बस भाई बस एक मिनट भाई गल है वे कि अगर एडी गंदी तहरीर सी ते फिर किताबां च अपने क्यों छापी केस जे अपने जेडे लोंडे बाजियां दे केस तेरे किताबां च क्यों छापी जे ए किताबां नु साड़ क्यों नहीं देंदे तुसी है एडी गंदी तहरीर है
ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 21 ਤੇ ਸਫਾ 192। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਇਹ ਤਹਰੀਰ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਖੁਸ਼ੂ ਕਦੂ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ? ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਖੇਤੀ। ओ भाई अस्सलाम वालेकुम। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਰ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। 100 ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਖੇ। कश्मीरी साहब तेरा पढ़ के ही सुना दियो। चलो के बैठा है मसीदियां दे है। चलो पढ़ के ही सुना दियो की लिखी है। खोला वो फतावा रिजविया। ओ चलो जेडी ये किताब खुली है ओनू ते पहले पढ़ मेरा लो। की ताल्लुक इस किताब नाल? अच्छा चलो नहीं तलक वैसे ही तो रुके ने ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ, खोला ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹੈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੋ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। लाख दी लानत मिर्ज़े कादियानी पे, लाख दी लानत उस खंजीर पे और उसकी गंदी और मेरी सेहत ते की ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਸ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਰ ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਖੋਲਾ ਮੈਂ ਸਹੀ बुखारी कौन कौन गुस्ताख सी मौला अली दा। देखो गुस्ताख शाह ਵੇਖੋ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। कश्मीरी साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ੀਆ ਖੋਲੋ ਪੈਣ ਚੋ। मैं मौला अली नाल किने किने जंग कीती पाओगे लानत उस ते मुआविया ते। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਖੋਲਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਆਮਕ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਲੋ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਟੱਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਓਏ? उसकी तू बड़ा भैन चोद है मोटी तेरी टट्टी निकल जानी तबलीग सही चला गया कब्र परस्ती। यार माइक ना म्यूट करो। मुफ्ती साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜਤਾ ਜੇ? माइक म्यूट करना कोई तुक नहीं बनता। कब्र परस्तो मुशरको मुफ्ती हराम बरेलवियो मुशरको तेरी जिंदगी ते किसे दृष्टि आज ते चीकां कढ़ा छड़ियां जे मुफ्ती साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਪੜਤਾ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? मुफ्ती साहब ये पढ़ देता है कुरान में अल्लाह कह रहा है बीवियों ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਹੁਣ ਪੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਰ? ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਸ਼ੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ हेलो कोई कादियानी जवाब देगा। मैं ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। क्या है मेरा नाम लेके तो क्या ਆ ਤੇ कादियानी ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਵਾਬ तू ਦੇ। इसनु यावे ना यावे ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਜਾ, ਜੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? चले यावे ते गलत लंदा पानिया ते मैं खोला किताबां दुइयां फिर। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, मैं ਫਿਰ सही बुखारी खोला ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ क्यों 1400 साल पहले क्यों ना पा ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਰਵਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। साल पहले तो क्यों ना शुरू करा मैं? ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। टोटल कादियानी मुल्हिद है, कादियानी नहीं मुल्हिद। लानत सिर पे जो लानत देते धैर्य ਇਹ ਲੋਂਡੇਬਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ तेरी बहन लोंडेबाज है। ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਚੰਦੇ ਉਗਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਓਏ ਪੱਕਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖਸ਼ੂ ਖਜ਼ੂ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਦਵਾ ਲੈ ਹਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਪੂਰੀ 1400 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੌਂਡੇ ਬਾਸ ਕਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬਾਸ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ तेरा मैं फतावा रज़विया ओए यार ये मिस मेल भाई ना करो यार, ना निकालो। नहीं फतावा रज़विया खोला मैं पैन चोदो कटो तलीम पेश करो मिर्जा साहब दी अब्दुल्ला। हाँ फतावा रज़विया ने मैं तलीम पेश करो बिस्मिल्लाह करो। पहले पूरी 1400 करनी है निकाल खुली है ओ किसे कुत्ते या पुत्रा सुन ले बोली ना विच ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। खुली है वो बंद करो। पता लगे 100 बंदा देख लिया पता लगे कि जी ये जमात का बंदा है। प्रोग्राम खोल लिया माशाल्लाह मरबी साहब आए ने जमात रिप्रेजेंट। ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਕੱਢੋ। आमक रज़ा बरेलवी कुत्ता की कह रहा सुनो वो ये कहता है कि मैंने एक कुत्ते को देखा ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਸ਼ੂ ਹਜ਼ੂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਅਨੀ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ ਯਾਰ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਦਾ ਆਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੂ ਖੁਜ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਹਸ਼ੂ ਹਜ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਮਾਤਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਤੁਲਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਚੁੱਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਮੋਡਰੇਟਰ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ? और इस बात शक्ले नुमाए ना यार ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। यार इन्हें कौन चुकना ह्यूमैनिटी कितने गए और तक ਓ ਯਾਰ ਮॉडरेटर कौन है? पता नहीं कौन है इतना ह्यूमैनिटी कितने गए यार। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ। आज और जो सामने किताब है ਉਹਦਾ जवाब देने यार पर शक्लिया ਉਹਦਾ जवाब देना। ਆ ਕਰੋ ਤਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। यार चलो शाबाश करी जाओ। 1400 गाल पास तेरे प्यो ने मौलवी मैं कह रहे हैं 1400 गाल पूरी कटनी जे। 1400 मैं फतावा पढ़ना मैनू पढ़न दो। कटो मिर्जा साहब की तलीम पेश करो शाबाश। अच्छा करो मिर्जा दी तलीम। चुप करो बकवास करते जान रहे हो। ओ यार मुफ्ती साहब तुम बच्चे तड़फ दे पे छुरी फेर अच्छा फतावा रज़विया की कहंदा है ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ। आमक रज़ा बरेलवी कुत्ता की कह रहा है सुनो। ओ यार मॉडरेटर कौन है गाਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ? खादू लंगड़ा मादर चोद कहंदा है आमक रज़ा बरेलवी ने यार कौन है मॉडरेटर ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਜਾਂਡੋਂ ਦਾ ਭੈਂਗਾ ਤੀਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਗਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ।
ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਓਏ ਯਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੋਡਰੇਟਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈ ਕੇ ਸੌਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਆ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਫੌਰਨ ਹੀ। ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਰੋਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਥੱਲੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? ओ यार फिर चुक लिया जे ਇਹਨੂੰ। जी वालेकुम सलाम। ओ यार इन्हें कौन चुकना होए? पता नहीं है इन्हें ना किनू किनू मुफ्ती मोटिवेट साहब बनाया सही किदी लगदा कोई डाडी पूंछल दे पैर अक्सर है मुफ्ती साहब। मैं नमाज दा खशू खदू दसिया जे बस ते ओ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਐ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਨਮਾਜ਼। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਵੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਜੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਨਿਕਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦੇ ਮਰਜ਼ਈ। और खंजीरो और पप्पू निकल जाओ। ओ यार अब्दुल्ला ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਤ ਗਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਲ ਲਵਾਓ ਇਸਮਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦਾ? ਉਹ ਕੀੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ। ਓਏ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਕੀਮ ਓਏ ਮਰ ਜਾ, ਰੁਕ ਤੇ ਸਹੀ ਓਏ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਕੀਮ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੀ ਯਾਰ। ਹਕੀਮ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਯਾਰ। यार ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। पे बार-बार चांदा मैं बार-बार सटना पिया। तेनू लावो मेहरबानी करे तो कोई ना चुके। मॉडरेटर बकाया खत्म कर देना यार। मॉडरेटर खत्म कर दे यार ह्यूमैनिटी। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਪੱਪੂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ। ਓਏ ਕੀਮ ਐ ਪੱਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ? ਓਏ ਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ। मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, बाजी ना व्याही होगी। अब्दुल्ला वे काफर भुकदा खुदे जरा। एक सवाल मैं करता हूँ, कौन है तुम में से बात करने वाला? चल इबारत पढ़ के सुना। गांडू
ਇਹ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਰੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ मेरा ਇਹਦਾ चैलेंज है ਇਬਾਰਤ तुम ਪੜੀ लोगों को, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ कोई ਲੈਂਦੀ ਸੀ बेगैरत ना आए, कोई बंदा आए पढ़ी तो सही जरा यार जो आदमी के साइन पड़े सिर्फ, और मैं उसके केले सामने लेने वाली तेरी मां ते नहीं सी पढ़ूंगा। ए ये मेरा चैलेंज है। आ जाओ अब मर जा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਓਏ है हिम्मत तुम्हें? ਓਏ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ कंजरो है तुम्हारे अंदर हिम्मत कंजरो, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ नहीं ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ कंजरो ਥੱਲੇ ਲਾਓ है ਨਾ तुम्हारे अंदर हिम्मत ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੋ ਜੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ सफ़ा 214 हिस्सा पंजम है और कादियानियों की हदीस नंबर 1350 बरकत बीबी साहिबा अहलिया की खुदा नु गालियां क्यों बड़ियां साने दा जवाब यार कौन चुकदा है प्या की ओ यार ओ मिनट फिर मैं टुर जावां यार ना चुको, मैं रिमूव कर रहा मॉडरेटर आज ज्यादा था ना, तू मॉडरेटर ही खत्म कर देना तू मॉडरेटर खत्म कर दे सारे ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਇਹ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਬਨਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਦਈਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਮਰਦਈਆਂ मौलवी लौंडे बस मैं तेरी कोई बात नहीं सुनी, मैं तेरी बोलती बंद कर छड़ी है। ओए अच्छा गल ते सुनो कीमा ए बरकत बीबी सी जेडी रंडी जेडी कमेंटी एक बारी लाइव देख के दोबारा स्टार्ट कर देख दे लाइव एक बारी मुफ्ती साहब एक बारी देखन दो लाइव देख दे एक बारी यार लाइव देख दे फिर देखे ड्रामे का अज इन्होंने पूरा शो लाने हैं आप मजोड़ियो निकलो निकलो अब लेते मादर चौधो दफा हो जा, किथों लभ गया तोहफा यार, ना चाहो कौन चाहता पे ना यार हिम्मती खत्म करनी यार की भैन चो मजाक बनाया लगे खत्म करन केड़ा एक के मॉडरेटर पर लानत लाइव देख दे तेन मैं किन्नी बारी आख्या तू जान के करान दिया लाइव देख एक 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 करके सूर दौड़ गए, मादर चौथ कुत्ती दे पुत्र डरपोक। काफर क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد